Welcome to MDC Learning, Standard TY Subject Indirect Tax. Hello learners, today we will talk about GST. Under that we will focus on time of supply of goods. So let's go further and let's know about the introduction of time of supply along with the main concept that will help you to solve various problems related to time of supply of goods. So first, let's focus on the introduction of time of supply. When the term comes time of supply, it means a date on which a person becomes liable to pay his or her tax, that is GST. It gives a confirmed fixed date to a person when he have to pay his tax, otherwise he have to pay extra penalties or extra cash to the government. Time of supply is applicable to goods and service both, because for goods and for service a date is given on which a person pays his or her tax. Time of supply have three important concepts. These three concepts are on your screen. First is time of supply of goods. Second is time of supply of service. Third is change in the rate of tax. First one, that is time of supply of goods, means the date which is given when the supply of goods takes place. Second is time of supply of service. Time of supply of service, that is date is given when a supply of service takes place. Third one is change in the rate of tax. Change in the rate of tax is a situation when the invoice is issued on a particular date and after the change in the rate of tax, the goods are delivered. इनवॉइस इशू करने और गुड्स को डिलीवर करने के बीच में जो रेट है टैक्स का वो चेंज हो जाता है. ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हम चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स का फॉर्मूलाज फॉलो करेंगे और अपना डेट यानी अपना टाइम फाइंड आउट करेंगे. You can get the whole information about time of supply under section 12 to section 14 of IGST Act 2017. Let's go a step further and focus on the content or a concept of our. Now we will go further and see our first time of supply of goods type, that is forward charges. We can also call it as a normal supply of goods. Here the most important thing that we have to pay attention is that if there is supply involves movement of goods, so yes, you will go toward your left hand side. If there is no movement of goods, then you will go toward no side. So let's see, अगर गुड्स में किसी भी तरह का मूवमेंट है तो हम यस की तरफ जाएंगे और किस गुड्स में किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं है तो हम नो की तरफ जाएंगे. मूवमेंट ऑफ गुड्स मीन्स हमारा मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर, डाइनिंग टेबल्स, मंदिर, ये जो सारी चीज़ें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, इनमें मूवमेंट है. इसे हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं तो हम इसे मूवेबल गुड्स कहेंगे. ऑन द अदर हैंड, फ्लैट, लैंड, these kind of things are not movable goods, so there is no movement of goods. So by paying attention on these two terms, we'll go further. So if there is movement of goods, so we will go toward yes side. So time of supply क्या होगा हमारा? So time of supply will be date of invoice, date of removal or date of payment in books or in bank, whichever is earlier. इन तीन डेट में से जो भी डेट सबसे नज़दीकी होगी, सबसे अर्लियर होगी, वही बनेगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई. अब दूसरी ही तरफ आपके राइट हैंड साइड में, इफ देर विल बी नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, इन सच ए सिचुएशन टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ मेकिंग द गुड्स अवेलेबल टू द रेसिपिएंट या फिर डेट ऑफ पेमेंट इन बुक्स और इन बैंक. इन चार डेट में से जो भी डेट सबसे अर्लियर होगी वही डेट बनेगी आपका टाइम ऑफ सप्लाई. सो आई होप स्टूडेंट दिस इज क्लियर.
that if there will be movement in a goods, then आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे और इन 3 डेट में से आपका जो भी अर्लीस्ट डेट होगा वो आप टाइम ऑफ सप्लाई लोगे. On the other hand, right hand side, if there will be no movement of goods, तो आपके सामने 4 डेट दिए गए रहेंगे, उनमें से टाइम ऑफ सप्लाई 4 डेट में से जो भी सबसे अर्लियर होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा. Let's go further, and now we have to focus on words. आपने जस्ट अभी स्क्रीन पे एक वर्ड देखा, रिमूवल, date of removal. What the word date of removal means? Dispatching of goods from a delivery by the supplier or by any other person to the recipient. बेचने वाला जब खरीदने वाले के पास गुड्स को भेज देता है उस डेट को हम कहते हैं डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ डिस्पैच. तो दिस वाज द मीनिंग ऑफ रिमूवल वर्ड, डेट ऑफ रिमूवल. डेट ऑफ इनवॉइस मीन्स जिस दिन हमें बिल दिया गया होता है, हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है उसका बिल जिस दिन हमें दिया जाता है उस डेट को कहते हैं हम डेट ऑफ इनवॉइस. So I hope these two words are very much clear. Date of invoice is nothing but the date of bill. Bill के ऊपर date होता है, that is your date of invoice. And date of removal means the date of delivery of a goods by this from the supplier to the recipient. Recipient is the person who is purchasing or receiving the goods. So let's go further and see the next one. Supply involves continuous supply. अभी जस्ट हमने देखा था फॉरवर्ड चार्जेस ऑफ गुड्स, दैट इज नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स. अब हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स. व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस सप्लाई, इन सच अ सिचुएशन टाइम ऑफ सप्लाई बिकम्स डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट इशूड और डेट ऑफ पेमेंट इन बुक्स और इन बैंक. इन 3 डेट में से आपको आपके क्वेश्चन में ये 3 डेट दिए गए रहेंगे. इन 3 डेट में से विच एवर इज द अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई. पहले समझते हैं व्हाट इज कंटिन्यूअस सप्लाई. वाटर सप्लाई कंटिन्यूअस है. आप हर महीने जाके आपके जो वाटर सप्लायर है, जो मुंबई म्यूनसिपैलिटी है, उसको नहीं कहते हो आप कि हमें वाटर सप्लाई चाहिए. आप अपना बिल पेमेंट हर महीने कर देते हो और आपके घर पे वाटर सप्लाई आता है. इलेक्ट्रिसिटी इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई, राइट. सो वो भी कंटिन्यूअसली आती रहती है. सो नाउ ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी दैट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू वायर, केबल, पाइपलाइन और अदर सर्क्यूट इज कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूअस सप्लाई. जिसे आपको कहने की जरूरत ना पड़े, वो कंटिन्यूअसली आपके डोर स्टेप पे आती रहे, इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस सप्लाई. अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इस ऐसे सिचुएशन में? डेट ऑफ इनवॉइस यानी बिल का डेट या फिर डेट ऑफ ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट इशूड. हर महीने आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है यानी एक बिल दिया जाता है, वो ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट है. या फिर जिस दिन को पेमेंट बुक में लिखा गया हो, बुक में या बैंक में दिख रहा हो, लिखा गया हो. इन तीनों ही डेट में से जो भी सबसे क्लोज डेट होगा दैट विल बी टाइम ऑफ सप्लाई. कंटिन्यूअस सप्लाई, कंटिन्यूअसली आपको वो चीज सप्लाई की जा रही है, आपको सिर्फ एक बार कहना है. Let's go further and see the goods sent on a approval basis. यहाँ पे आपको टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना होगा और टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करने के लिए आपके सामने 3 डेट दी गई रहेंगी. उन 3 डेट में से जो भी सबसे छोटा डेट होगा वही आपको कंसीडर करना है. बट ऑफ कोर्स वी हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर डेट. सो हियर डेट ऑफ इनवॉइस इशूड या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस. अगर 1 तारीख को 6 months फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल, अगर 1 जनवरी 2020 को आपका डेट ऑफ रिमूवल है तो यू हैव टू कैलकुलेट इट कि 1/7/2020 आपका 6 month फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल होगा. तो 6 महीने आपको कैलकुलेट करने हैं और जो 6 महीने कैलकुलेट करने के बाद जो आपका डेट आएगा वो डेट आपको लेनी है. हाउ दिस विल टेक प्लेस वी विल सी इन अ क्वेश्चन पार्ट. देन डेट ऑफ रिसिप्ट, पेमेंट इन अ बुक और अ बैंक. अगेन इन तीनों में से जो भी सबसे क्लोजेस्ट डेट होगा दैट डेट यू विल टेक योर टाइम ऑफ सप्लाई. लेट्स गो फर्दर एंड सी
Reverse charge mechanism. Yes, one of the most important thing and which comes in a question. So, reverse charge mechanism is, that is RM. In such a situation, time of supply will become date of receipt of goods या फिर date of payment entered in the book of accounts of the recipient और date of payment debited in the bank account of the recipient या फिर 31st day from the date of invoice. इन तीनों डेटों में से जो भी सबसे अर्लीस्ट डेट होगा, that date will become your time of supply. अब समझते हैं कि what is reverse charge mechanism. Now on your screen you can see that there is a proper meaning of a reverse charge mechanism. I try to make it much more simpler for you to understand. Reverse charge mechanism means the liability which is on a recipient. Of course you know that the GST is a tax which has to be paid by the final consumer of the product. जो final प्रोडक्ट को लास्ट में जो हमारा चेन होता है बाइंग एंड सेलिंग का, उसमें जो लास्ट में खरीदता है दैट इज कस्टमर, ये जीएसटी वही पे करता है, राइट. So pays tax by the recipient of the goods instead of suppliers of such goods and services. Example किससे समझते हैं? A registered business owner receiving goods and services from an unregistered vendor. जो रजिस्टर्ड बिजनेस ओनर है वो एक ऐसे पर्सन से गुड्स खरीदता है जो अनरजिस्टर्ड वेंडर है. सो इन शॉर्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है? अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहूं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एक ऐसा पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है, वो एक ऐसे पर्सन से गुड्स एंड सर्विस लेता है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है. कैसे ये सारी चीजें टेक प्लेस करती है, चलिए एक सिंपल डायग्राम के थ्रू देखते हैं. सो फर्स्ट वन इज नॉर्मल मैकेनिज्म फॉर लेवी ऑफ जीएसटी. जीएसटी कैसे अप्लाई होती है, इससे पहले हम एक नॉर्मल मैकेनिज्म से समझने की कोशिश करते हैं. Let's see. Now on your screen you can see the government जिन्हें टैक्स पे किया जाता है, देन है सप्लायर यानी बेचने वाला, और फिर है रिसीवर यानी खरीदने वाला. तो जो टैक्स है वो जाता है सप्लायर के पास से गवर्नमेंट के पास एंड रिसीवर के पास से सप्लायर के पास. सो जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देती है, डिपोजिट जीएसटी विद गवर्नमेंट, एंड रिसीवर भी यही करता है, मिक्स पेमेंट प्लस जीएसटी. यानी जो रिसीवर जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो प्रोडक्ट का अमाउंट और प्रोडक्ट के अमाउंट के साथ प्लस जीएसटी. आपने बहुत सारे बिल्स पे देखा होगा, आप जितने का सामान खरीदते हो वो अमाउंट प्लस जीएसटी यानी टैक्स करके आपको फाइनल अमाउंट पे करना होता है. मान लीजिए 100 रुपए का सामान है तो उसके ऊपर 10 रुपया जीएसटी, तो 100 रुपए का सामान है लेकिन आपको पे करना होता है 110 रुपए. ओके, सो दिस इज अ नॉर्मल मैकेनिज्म. जो रिसीवर है वो सप्लायर को देता है टैक्स और सप्लायर जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स आगे बढ़ा देती है. बट इन केस ऑफ अ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉर लेवी ऑफ अ जीएसटी हमारा थोड़ा सा कंसेप्ट बदल जाता है. गवर्नमेंट, सप्लायर, रिसीवर. जो हमारा रिसीवर है वो सप्लायर को टैक्स पे करता है, बट जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड, जो प्रोसेस है उसका वो रजिस्टर्ड ना होने के कारण जो रिसीवर है वो टैक्स डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देता है. देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा होगा कि मिक्स पेमेंट प्लस नो जीएसटी. रिसीवर जो है वो सप्लायर को पैसा देता है लेकिन जीएसटी नहीं देता. हमारे केस में 110 रुपए थे, 100 रुपए कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट प्लस 10 रुपए जीएसटी. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो सप्लायर है उसे सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे, जीएसटी नहीं मिलेगा. वो जो 10 रुपए होगा वो रिसीवर डायरेक्टली गवर्नमेंट को देगा. डिपोजिट जीएसटी विद गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर. I hope this is clear, students. Now, in a normal mechanism for levy of GST, this is the concept. And when the term comes reverse charge mechanism, that is RM, the process slightly changes. Let's go further. This particular section is only for understanding purpose. Let's go further and see. Voucher exchangeable for goods. Students, voucher exchangeable for goods are not often asked to you in exams. Voucher exchangeable for goods is on your screen.
if supply is identifiable, and in all other cases. When supply is identifiable, the date of issue of voucher will be your date of invoice. That is the date of invoice of voucher will be your time of supply. And in all other cases where the supply is not identifiable, the date of redemption of a voucher will be a time of supply. So thank you student for attending today's lecture. I see you in another lecture. And today we did time of supply of goods. In next lecture we will focus on time of supply of services.